Good morning. Was there any homework? No homework? Acha. Then what you do? First, mark homework for today because later I will forget. Mark 43rd, 43rd, and 47th as homework. You have to calculate value of firm and overall cost of capital using net income approach. तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू. ठीक है. तो yesterday we have started with chapter capital structure. What do you mean by capital structure? Mix of different sources of finance, right, or capital, the proportion in which we are mixing the capital. Some important factors what we have considered, the most importantly risk, cost and control, right? Risk point of view say, cost point of view say, as well as control point of view say, a finance manager will decide which capital should be used or which source of capital should be used to the more extent, right? Then we have seen some formulas, right, and then we have started with the discussion on theories. Basically हमें चार important theories study करनी है. Those four theories were divided into two parts. First part was saying कि as and how your capital structure will change, the cost of capital will change, right, and because of that the value of firm will also change. And the two theories says कि capital structure का कोई impact नहीं होगा on cost of capital as well as the value of firm, right. उसका जो उनका चारों थ्योरी का जो जस्टिफिकेशन है वो आज देख लेंगे. बट नेट इनकम अप्रोच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट. नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या देखा था? व्हाट वर हिज अजम्पशंस? एक तो कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा. ऑलवेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, बराबर. और उनका प्रोपोजिशन ये था कि जैसे जैसे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट इंक्रीज होगा, the overall cost of capital will fall. Overall means simply you can say average of both the sources of capital, बराबर. Overall मतलब total capital के ऊपर what is the cost of capital, बराबर. इक्विटी की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, we are taking just earnings available to equity divided by the value of equity. When we are considering debt, we are calculating only cost of debt. But when we are considering total capital, then we'll be considering operating profit, बराबर. So the theory was as and how debt content increases, cheaper source of finance proportion increases, and therefore average will decrease, the average cost of capital will decrease. Therefore optimum capital structure as per that theory was use maximum possible debt, right. एंड इसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. स्टेप्स अगर आपको याद हो तो पहले तो आप ईबीआईटी डिटरमाइन करोगे, ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करोगे, यू विल बी गेटिंग ईबीटी. जनरल अजम्पशन में हमने देखा था देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, टैक्स भी नहीं था, मींस ईबीटी विल बी द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Cost of equity is assumed to be constant, so cost of equity will be always given to you. So EBT divided by cost of equity will be getting value of equity. Value of debt will be given, so value of equity plus value of debt you'll be getting value of firm. EBIT divided by value of firm you'll be getting overall cost of capital. This is what will be asked under net income approach, right. Then we have started with the next theory, net operating income approach. वैसे तो ट्रेडिशनल अप्रोच आता है सीक्वेंस से, बट पर्पसली वी हैव स्टार्टेड विद द नेट इनकम अप्रोच बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का भी सम पार्ट इज यूज्ड. ओके, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने क्या देखा था? चलिए वापस एक बार रीड एंड डिस्कस कर लेते हैं. कहां गया? पेज नंबर, वैसे तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करके ही जाना होगा फिर भी. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. अब सर्विस रीड फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशन. चलिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या? योर ईबीआईटी ओनली, बराबर. whenever it is operating income we are talking of your earnings before interest and tax, यानी कि इंटरेस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके पहले का जो आपका अर्निंग्स है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट. तो हियर assumption, कौन सा कलर लिया मोहित सर ने?
First, cost of debt is always less than cost of equity. This we have already seen. बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट इक्विटी इज अ कॉस्टलियर, बराबर. नाउ second assumption is cost of debt remains constant at various levels of debt equity mix. net income approach में assumption क्या था? cost of debt as well as cost of equity remains constant. अब net operating income approach में क्या assume कर रहे हैं कि cost of debt सिर्फ constant रहेगा, cost of equity constant नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि yesterday हमने वो reason discuss किया था. what was the reason कि cost of equity constant नहीं रहेगा? हाँ दीक्षा. हाँ, ओवरऑल परसेंटेज सेम रहता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल चेंज. जैसे जैसे आपका डेट कंटेंट इंक्रीज होगा, रिस्क इज एडिंग टू द बिजनेस. जब आप मोर डेट कंटेंट यूज करोगे, रिस्क, द फाइनेंशियल रिस्क इज एडेड इन द बिजनेस. अल्टीमेटली वो रिस्क बियर कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली. तो व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बियरिंग मोर रिस्क, दे विल इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेशंस, राइट. तो उनके अगर एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल राइज, बराबर. इसलिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी राइजिंग एज एंड हाउ द डेट कंटेंट इंक्रीजेस, राइट. तो यहां पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, नीचे आपके नोट्स में वैसे भी ड्रॉ किया रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट. Next point, shall we read? Cost of equity increases as debt content increases due to higher financial risk and higher expectation of equity investors. ये point हमने already discuss किया हुआ है. And third point, market capitalizes the value of firm as a whole without giving importance to the value of debt equity mix. Hence the overall cost of capital is constant. अब इसका क्या मतलब है? When say there are, एक ही रिस्क क्लास है, मतलब एक ही इंडस्ट्री है, ओके, उसमें दो कंपनीज है, कंपनी ए, कंपनी बी. दोनों कंपनी की कैपेसिटी सेम है, ठीक है. से टोटल कैपिटल यहां पे भी 1 करोड़ है, यहां पे भी 1 करोड़ है, यानी कि एसेट में इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, कैपेसिटी सेम रहेगा. उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से फॉर एग्जांपल 20% है इस इंडस्ट्री में, ठीक है. तो दे विल बी जनरेटिंग 20 lakhs एज इनकम, दिस विल बी जनरेटिंग एज 20 lakhs एज इनकम, राइट. नाउ अज्यूमिंग दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल. अब 1 करोड़ में ए की कंपनी के केस में सपोज इक्विटी था 60 lakhs एंड डेट था 40 lakhs, एंड कंपनी बी के केस में से इक्विटी था 30 lakhs and debt was 70 lakhs. ओके, तो दो कंपनी है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, लेकिन उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, राइट. नाउ व्हेन यू विल बी कंसीडरिंग एज अ टोटल अप्रोच, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी में? 1 करोड़. एंड टोटल ऑपरेटिंग अर्निंग, जब इन्वेस्टमेंट सिमिलर है तो अर्निंग भी सिमिलर रहेगा, तो 20 lakhs इज द अर्निंग. सो व्हाट विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 20 lakh डिवाइडेड बाय 1 करोड़, दैट इज 20%, राइट. दिस विल बी कांस्टेंट cost of capital for both the companies. This is the assumption. Okay, what we are assuming is कि जब दो कंपनी है, दोनों कंपनी की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल इज आल्सो सेम, तो इन्वेस्टर्स सिर्फ उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए उनके एक्सपेक्टेशंस अलग नहीं रखेगा. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट. हाँ, इक्विटी डेट में चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, जब भी आप yesterday we have discussed कि जब भी आप से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, उसमें एक एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा, दैट विल रिमेन सेम. उसमें 4 कंपनी हो, हर एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग हो, फिर भी जब हम इन्वेस्ट करेंगे, सपोज मैंने आपको कहा कि आज आप स्टॉक मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करो, ओके, से वोडाफोन है, जियो है, रिलायंस है, एक्सेट्रा. मैंने आपको कहा कि टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपेक्टेड है 30% रेट ऑफ रिटर्न आएगा. तो सपोज जियो एज वेल एज वोडाफोन की कैपेसिटी सेम है, उनका जो नेटवर्क कवरेज एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है. बट जब हम टेलीकम्युनिकेशन एज अ इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न टोटल देखेंगे, तो इट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द कंपनीज. सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग नहीं होगा. दिस इज द अजम्पशन ऑफ दिस थियरी. ओके,
Now, what is been given as a theory? Yesterday we have discussed कि यहाँ x एक्सिस पे जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं आपका डेट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. Now, when debt content is increasing, initially cost of equity will remain constant. Say for example, debt content था 30%, अब 40% हुआ, right? तो immediately equity shareholders increase नहीं करेंगे क्योंकि hardly 30 से 40% हुआ है. But when it will increase beyond say 45-50%, now people, the equity shareholders will start feeling the riskiness. So gradually it will increase, right? And ये जो increase cost है, दिस इज ऑफसेटेड बाय बेनिफिट इन इंक्रीज इन द डेट. नेट इनकम अप्रोच में हमने देखा था जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज होगा, चिपर सोर्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा, तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एवरेज कम होगा. तो जब एवरेज कम हो रहा है एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पे जितना बेनिफिट हो रहा है वहां पे उतना ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने की वजह से दैट विल रिमेन एट कांस्टेंट लेवल. देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट. एंड क्योंकि ईबीआईटी कांस्टेंट रहेगा and overall cost of capital will remain constant, value of firm हम calculate कैसे करते हैं? Value is calculated as EBIT divided by overall cost. So overall cost भी constant है, EBIT भी constant ही रहेगा, क्योंकि अगर आपका कैपिटल है 1 करोड़ तो यहाँ पे 60 lakhs 40 lakhs हो या 90 lakhs इक्विटी एंड 10 lakhs डेट हो, EBIT तो सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा. Therefore the value of firm will remain constant at all levels of debt equity mix, right? एक बार रीड करेंगे and then we'll start with the problems. The debt may be cheaper than equity, but the risk perception of equity investors increases with the use of additional debt in capital employed. Increase in financial risk causes equity capitalization rate to rise. Thus, advantage of using low cost debt is set off exactly by increase in equity capitalization rate, and therefore the overall cost of capital remains constant for all degree of debt equity mix, right? Market capitalizes the value of firm as a whole. The split between the debt equity is not important. Market value of firm is ascertained by capitalizing the net operating income at overall cost of capital, which is constant. That is, market value is not affected by debt equity mix change, right? And since weighted average cost of capital at all levels, every debt content is यहाँ पे, since weighted average cost of capital is constant at all levels, यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कोई आएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट. तो अगर आप कह रहे हो इक्विटी 10%, डेट 90% और इक्विटी 90%, डेट 10%, दोनों केस में ओवरऑल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहेगा. Therefore here there is no concept of optimum capital structure, right? Now what are the steps? First, here to determine EBIT, mostly it will be given only. At the most EBIT देने के लिए वेरिएशन क्या हो सकता है? सम प्रॉब्लम्स में आपको डायरेक्टली EBIT नहीं देंगे, तो क्या देंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी विल बी गिवन and return on capital employed will be given. Now you already know return on capital employed is calculated as your total capital into EBIT divided by total capital, right? तो अगर आपको return on capital employed दिया है तो EBIT आप कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कैपिटल या टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो एट द मोस्ट इतना वेरिएशन हो सकता है. सो ईबीआईटी के बेसिस पे हम ईबीटी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सिंपली विल बी डिडक्टिंग इंटरेस्ट, राइट? नाउ हियर विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ फर्म, ओके, एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड एज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच विल बी गिवन टू यू. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब दिया रहेगा. नेट इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट था इसलिए वो दिया था, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा. नाउ आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, देयरफॉर इट विल बी गिवन टू यू एंड व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आर यू गेटिंग? नेट इनकम अप्रोच में हम ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अब ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो वी हैव टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अदरवाइज कैलकुलेशन इज सेम, फॉर्मूलाज आल्सो विल बी यूजिंग सेम. तो वैल्यू ऑफ डेट विल बी एज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट. तो यहां पे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं. वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट. तो वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट.
and then we can calculate cost of equity as EBD, that is earnings available to equity shareholders divided by value of equity. Have you understood? Just एक बार ये steps जो है read कर लो. अगर थियोरी के लिए have you read? सपोज अगर थियोरी के लिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एक बार पूछा है इंस्टीट्यूट में. व्हाट पॉइंट्स यू कैन राइट? नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. यू आर गोइंग टू टेल मी पॉइंट्स. सेम रहेगा. तो बट फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल बी राइटिंग? बेसिक उनका प्रोपोजिशन क्या है कि नेट इनकम अप्रोच सेज कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स ओवरऑल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म, एंड यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट्स ओवरऑल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म. नाउ यू कैन राइट दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पॉइंट. नेट इनकम अप्रोच में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? फॉल्स विथ इंक्रीज इन डेट, जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा. एंड यहां पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में दिस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी. बराबर? ओके. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू कैन गिव? यहां पे हम जब ओवरऑल कॉस्ट का लिखा है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं. यहां पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है? इंक्रीज होती है जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज होगा, बट यहां पे कांस्टेंट रहेगा. व्हाट नेक्स्ट वी कैन राइट? कैन वी से नेट इनकम अप्रोच में रिस्क परसेप्शन कांस्टेंट था. नेट इनकम अप्रोच में जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने उनके एक्सपेक्टेशन इंक्रीज नहीं किए थे, दे हैव केप्ट इट कांस्टेंट. इसका मतलब नेट इनकम अप्रोच में रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिमेन कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग. एंड यहां पे रिस्क परसेप्शन इंक्रीजेस एज एंड हाउ डेट इंक्रीजेस. बराबर? 5 मार्क के लिए पूछा तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो लिखने चाहिए. Once it has been asked to you to differentiate between net income and net operating income approach. और क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम? You can write optimum capital structure. नेट इनकम अप्रोच ने क्या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है? यूज मैक्सिमम पॉसिबल डेट कंटेंट इनटू योर कैपिटल स्ट्रक्चर. क्योंकि हमने देखा था जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा था. बट यहां पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था? नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दिस 5 पॉइंट्स यू कैन राइट. राइट? थ्योरी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा था, हैव आई टोल्ड यू कि थ्योरी भी पूछी जाती है आपको? नहीं बताया मैंने, बट एटलीस्ट मैंने शुरुआत में जब सिलेबस बताया था आपको, तब मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कहा था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमने डिस्कस नहीं किया पर्पसली. वैसे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया दैट इज ओनली द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पूरा थ्योरी हमने डिस्कस किया था. ओनली द थिंग इज दैट कि रीडिंग पार्ट एक बाकी है. व्हाट आई वाज थिंकिंग इज जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी का जो चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स है आपके लिए स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द सेकंड इज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. वो हम लास्ट में लेंगे. ओके, एक दिन में वो थ्योरी, 1 या 2 दिन में थ्योरी कवर कर लेंगे. ओके, बट मोर इंपॉर्टेंटली इज दिस. बट देन थ्योरी ऐसे नहीं कि वो सिर्फ टॉपिक में से ही पूछा जाएगा. डेफिनेटली वहां से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा 100%. बट अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरी कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी टॉपिक, एनी सिलेबस. आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स है वहां से कौन से टॉपिक में से भी, कोई भी टॉपिक में से भी थ्योरी आपको पूछी जा सकती है. एंड थ्योरी का नॉर्मल वेटेज होता है 10 मार्क्स.
मतलब जो 60 मार्क्स का एफएम रहेगा उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंपलसरी 20 मार्क्स के लिए, बराबर। उसमें थ्योरी नहीं आएगी, उसमें 4 क्वेश्चन ही रहेंगे प्रैक्टिकल। रिमेनिंग 40 मार्क्स का जो वेटेज है वो उसमें मैंने कहा था आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 4 अटेम्प्ट करना है आपको। यूजुअली जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 वो थ्योरी रहता है, ठीक है। 5 मार्क्स के एक एंड छोटे छोटे डेफिनेशन एक्सेट्रा ऐसे 2-2 या 3 मार्क के 2-3 रहेंगे क्वेश्चंस। 10 मार्क के लिए मोस्टली थ्योरी, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थ्योरी के लिए रहता ही है। So when you are studying each topic, you have to read the theory also. Okay? ऐसे नहीं कि बायट करना है, बट जस्ट कैजुअल रीडिंग करना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पॉइंट्स लिखने से नहीं होते। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू विल बी एबल टू राइट प्रॉपर्ली। ओके, सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, वहां पे आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट्स, राइट। शैल वी प्रोसीड? चलिए, अब डिस्कशन तो कंप्लीट किया, सो वी कैन स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। लिखना है क्या? लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, वो समझ में आएगा क्या आपको? ओके, शुड आई डिक्टेट देन? क्या आप लिखोगे शॉर्टकट में? मैं जस्ट बताता हूं आपको मैंने क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म, एंड नेट ऑपरेटिंग में डज नॉट लिखना है आपको। क्या हुआ? वो ब्रेन में याद कर रही है अभी से। हाँ, स्क्रीनशॉट। सेकेंड पॉइंट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, it falls as and how debt content increases, और आप लिख सकते हो falls with use of more debt। and net operating income approach में overall cost of capital remains constant irrespective of debt equity mix। should I repeat Snell? कौन सा फर्स्ट पॉइंट? क्या कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स, अफेक्ट्स लिखो या इन्फ्लुएंस लिखो, कोई भी लिखो। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल and value of firm। capital structure affects overall cost of capital and value of firm, and operating income approach में capital structure does not affects। so same लिखना है, does not affect overall cost of capital and value of firm। second point, overall cost of capital, आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो एंड उसका प्रोपोजिशन यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से, या डायरेक्टली आप पॉइंट ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स with the use of more debt। overall cost of capital falls with use of more debt, फर्स्ट कॉलम में। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में it remains constant irrespective of debt equity mix, remains constant irrespective of debt equity mix। same point in case of value of firm, only the point will be value of firm increases as and how debt content increases। value of firm increases as and how debt content increases। and net operating income approach में same point रहेगा, value of firm remains constant irrespective of debt equity mix। कौन सा पॉइंट?
हाँ, फिफ्थ वन क्या लिखा है मैंने? हाँ, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी यूज मैक्सिमम पॉसिबल डेट, फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है यहाँ पे रिस्क परसेप्शन। नेट इनकम अप्रोच में रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट लिखा है रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन डेट, with increase in debt. And net operating income approach में risk perception of equity shareholders increases as and how debt content increases. Risk perception of equity shareholders increases as and how debt content increases. And last point, optimum capital structure. Use maximum possible debt and net operating income approach में no optimum capital structure. Completed? Shall we proceed now with problems? Read 34th problem. Thirty-fourth problem. Now it has been given ABC is expecting EBIT 4 lakhs and belongs to risk class of 10%. What do you mean by that? Huh? It belongs to risk class of 10%. Exactly. Means that is overall cost of capital. Whenever it is been given the risk class belongs to 10%, it means पूरे इंडस्ट्री में वो जो रिस्क क्लास है उसके लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। तो वहां पे आप लिख सकते हैं whenever it is been given like this risk class of 10% etc, it means that information is been given overall cost of capital. You are required to find out value of firm, cost of equity capital if it employs 8% debt, मतलब इंटरेस्ट रेट 8% दिया आपको, to the extent of 20, 35 and 50% of total financial requirement of 20 lakhs. यानी कि यहाँ पे तीन कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 20% डेट, remaining 80% will be equity, then 35% debt, 65% will be equity and 50% and 50% debt equity. तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म. फर्स्ट टेल मी वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अभी ऊपर ही लिखा था ना, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, तो वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा यहाँ पे क्योंकि रिस्क क्लास तो सेम ही है, ओवरऑल कॉस्ट सेम ही रहेगा, ईबीआईटी भी सेम ही रहेगा. तो वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल डेट इक्विटी मिक्स. ओके, एंड देन वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी चेंजिंग, राइट? तो चलिए लिखते हैं. राइट डाउन हेडिंग प्रॉब्लम नंबर 34th, कैलकुलेशन ऑफ value of firm and value of equity.
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड राइट हैंड साइड में डेट, उसके नीचे 20%, 35% एंड 50%। यहाँ पे हम अमाउंट भी लिख सकते हैं डेट के। हाउ मच विल बी अमाउंट ऑफ डेट इन फर्स्ट कॉलम? हाउ मच? 4 lakhs। टोटल कैपिटल 20 lakhs है, तो 20 lakhs का 20% विल बी डेट। तो यहाँ पे हम अमाउंट भी लिख सकते हैं 4 lakhs। यहाँ पे 20 lakhs इंटू 35% 7 lakhs एंड यहाँ पे 10 lakhs। So where from you will be starting? What you will be writing first? EBIT. That is been given 4 lakhs, na? This will remain constant. Now, what we can do first? We'll complete with that part EBT tak. So less interest कितना आएगा? एट द रेट 8% ना। तो डेट की अमाउंट आपने ऊपर कॉलम में लिखिए, सो दैट अमाउंट इनटू 8%, इट विल बी हाउ मच? 32,000। यहाँ पे 7 लाख इंटू 8%, 56,000 एंड 10 lakhs इंटू 8%, 80,000। तो EBT आएगा आपका 3,68,000, 3,44,000, 3,20,000। What first you can calculate? अब क्या लिखोगे? डी वैल्यू ऑफ फर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए EBIT तो लिखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है आपको प्रॉब्लम में, तो जस्ट हमें वो लिखना है एंड देन विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर डी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कितना? 10% ना। वैल्यू ऑफ फर्म, you can write serial number A upon D, EBIT divided by overall cost. So 4 lakhs divided by 10%, 40 lakhs। तो टोटल वैल्यू जो है वो अब 40 lakhs है। What next I'll be writing? वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल चुकी है मुझे, डेट तो हमने ऊपर लिखा है, जस्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट? एंड देन वंस वी वैल्यू ऑफ गेट वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट 4 lakhs, 7 lakhs and 10 lakhs। So you can write value of equity, that will be serial number E minus F, 36 lakhs, 33 lakhs and 30 lakhs। What next? बेसिकली वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा था ना आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी पूछा था। अच्छा, तो ऊपर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होना चाहिए। हेडिंग में तब क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखोगे ना। दिस विल बी EBT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आप लिख सकते हो सीरियल नंबर C अपॉन G। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब से आपकी कंपनी है, ठीक है, एंड मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने आपके कंपनी में
से इन्वेस्ट किया है एज ए इक्विटी शेयर, राइट। तो आपने जो अर्निंग्स अर्न किया है अल्टीमेटली किसको दोगे आप? इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे। नाउ थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो सपोज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जो आप से सेल्स करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, उसमें से जो फाइनल अर्निंग्स रहेगा वो आपको किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। क्यों दे रहे हो आप एज अ रिटर्न? क्योंकि वहां से उन्होंने अपने कैपिटल लिया, तो आपके कंपनी से तो आउटफ्लो हो रहा है, बराबर। से फॉर एग्जांपल डिविडेंड के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 लाख जो अर्निंग्स हुआ था, 2 लाख में से हमने 1.5 लाख रुपए एज अ डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो 1.5 लाख कंपनी से आउटफ्लो तो हुआ है, we are paying it as cost. And why we are paying? Because we have procured the capital from the equity shareholders. So जो हम पे कर रहे हैं equity shareholders को, that is the cost of equity. In simple words में, the return which we are giving to equity shareholders, that is cost of equity. Value of equity means value. Suppose मैंने जब 10 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू अब 12 lakhs हो चुके हैं, the worth of the equity. तो 12 lakhs will be the value of equity. मेरी इन्वेस्टमेंट 10 lakhs है, but the worth of equity has changed. हो सकता है वो कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, ओके। यहाँ पे जब एक्चुअल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। सिंपली आज अगर आप से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर परचेस करने जाओ, सपोज 2000 वैल्यू होगी, इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ इक्विटी ओनली द थिंग इज दैट कि अब रियल वर्ल्ड में देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल। यहाँ पे हम सिर्फ अर्निंग्स के बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस सिंपल वर्ड्स में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हो सकता है फेस वैल्यू 100 हो, मार्केट वैल्यू इज 200, राइट। नहीं नहीं, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? ओके, आपने इन्वेस्ट किया 10 lakhs, ओके, 12 रुपीज, तो 12 लाख टोटल वैल्यू होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 10 lakhs। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज समथिंग डिफरेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हुई 10 lakhs एंड द वैल्यू इज 12 lakhs। तो 2 lakhs we can say is the gains which you are earning, but that is not realized gains. ओनली द वर्थ आपकी इंक्रीज हो चुकी है, वेल्थ आपकी इंक्रीज हो चुकी है। जब आप सेल करोगे दैट टाइम यू आर रियलाइज्ड इट, राइट। तो थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम कैपिटल प्रोक्योर करने के लिए जो पे कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल मींस टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो मार्केट वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ डेट। नॉर्मली डेट की वैल्यू चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स सेम। So then you can write cost of equity, this will be EBT divided by value of equity. So EBT तो हमने कैलकुलेट किया था 3,68,000 divided by 36 lakhs, 10.22% ना। The next 344 divided by 33 lakhs, 10.42, and last 10.6, 67%, right? तो here also you can see the proposition given by net operating income approach कि जैसे जैसे debt content increase हो रहा है, risk perception is increasing and therefore they are increasing their expected rate. From company point of view it is nothing but cost of equity. Complete कीजिएगा, एक बार go through कीजिएगा, see whether if you have any other difficulty, slightest difficulty do please ask and we'll discuss it. Leverage, capital structure and cost of capital में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बिलीव मी दीज आर वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स, आपको उसमें से एक मार्क भी लूज नहीं करना। कैपिटल बजटिंग के केस में मैं आपको कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, बट इट इज नेवर अश्योर्ड कि आप देख के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अश्योर्ड नहीं है, मतलब हो सकता है आप इमीडिएटली सॉल्व कर पाओगे, हो सकता है सॉल्व ही नहीं होगा। नॉर्मली इट हैपेंस कि कैपिटल बजटिंग के प्रॉब्लम्स टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट होते हैं, राइट। मतलब एग्जाम में बहुत बार इस तरह से पूछे जाते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है, वहां पे ही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, एंड नॉर्मली दीज प्रॉब्लम्स आर बिगर आल्सो। लेकिन लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टोटल वेटेज नियर अबाउट 20 मार्क्स तो जाएगा।
एंड उसमें से एक मार्क भी आपको लूज नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड स्टेप बेसिस है। लेवरेज में भी आपने देखा है हर जगह आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने थे, एनालिसिस टू सम एक्सटेंट कमेंट करना था। इसमें भी अब तक तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बट लाइक दिस क्वेश्चंस आर वेरी रेयरली आस्क्ड, बट हो सकता है कि 4 मार्क या 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। फॉर प्रैक्टिस करते टाइम तो बेसिक से करेंगे, बट लेटर ऑन जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन है वो आज के डेट में हर एग्जाम में एक सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में। तो बाद में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अभी तो फिलहाल सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, एनी डिफिकल्टी सो फार? चलिए, नाउ रीड 11th प्रॉब्लम। Completed with reading? You can write down heading calculation of total value of firm and equity capitalization rate. कॉलम्स क्या क्या ड्रॉ करने होंगे मुझे? एक ही कॉलम ड्रॉ करना है या हो गया मल्टीपल कॉलम्स? आपको दिया था आउटस्टैंडिंग डेट 2 लाख है, राइट? मतलब यहां पे फर्स्ट केस में डेट 2 लाख। अब पॉइंट नंबर सेकंड या बी में दिया हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ डेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख, यानी कि सेकंड केस डेट अगर 3 लाख हो तो व्हाट विल बी द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वैल्यू ऑफ फर्म। एंड थर्ड केस में फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल, एग्जिस्टिंग मतलब बेसिक लेवल 2 लाख डेट में से अगर हमने 1 लाख का डेट रिटायर किए मतलब रीपे कर दिए तो क्या होगा, यानी कि डेट यहां पे कितने होंगे थर्ड कॉलम में? 1 लाख। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इतना मैं आपको हेल्प करने वाला था, बाकी का आप सॉल्व करोगे, ठीक है? एफएम में नॉर्मली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि कॉलम कौन से ड्रॉ करने। कैपिटल बजटिंग में तो हर एक प्रॉब्लम में मैं आपसे पूछूंगा कि कॉलम्स कौन से ड्रॉ करने, क्योंकि इतने सारे ऑलमोस्ट 10-12 कॉलम्स तो ड्रॉ करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में। हाँ, 10-12 थोड़ा एग्जैगरेट किया, 7-8 तो ड्रॉ करने पड़ते हैं। दो तीन ही प्रॉब्लम है जहां पे 10 तक जाता है, अदरवाइज नॉर्मली 7, 8, 9 कॉलम्स। You can complete with remaining part.
Any answer? How much? 2,40,000 value of firm. You sure? वैल्यू ऑफ फर्म तो वैसे सेम ही रहेगा. 4 lakh is correct. बराबर. Cost of capital, equity, 15, 20 and 13. How much? 15%, 20% and 13 na? 13.33. 13.33%. Right? That's it. इतना ही है. Read 44th. क्या रीड? अपने सुंदर अक्षरों में वहां पे होमवर्क लिख लो. क्या सिंपल ही है तो है ना? होमवर्क कर सकते हो आप. 3 होमवर्क हुए ना अब तक. 43rd, 44th and 47. Shall we proceed? चलिए. Now third theory we are going to start. Traditional approach. Have you all completed? Shall we discuss? Okay. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया है? उसने सिर्फ मिक्स किया है नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड देन ही हैज एडेड वन पॉइंट. उसने क्या कहा है? Now on x axis I am writing debt equity mix. ठीक है. Now what he says, शुरुआत में जैसे अब यहां पे 0% डेट होगा, राइट? ग्रेजुअली जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज होगा,
immediately will the equity shareholders will increase their expected return slightly. Suppose आज आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल कैपिटल था 1 करोड़, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स था, ठीक है. टुडे दे हैव रिड्यूस्ड द इक्विटी कैपिटल एंड 20 लाख का उन्होंने डेट लिया, तो हार्डली 20% डेट इंक्रीज होने की वजह से इमीडिएटली आप इंक्रीज नहीं करोगे, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट. सो व्हाट ही इज सेइंग इज इनिशियली एज एंड हाउ डेट कंटेंट इंक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ डेट तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में जाओगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्रीज होगा, which we have studied in the net income approach. बराबर, नेट इनकम अप्रोच में हमने ये देखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट इज कांस्टेंट, and because of this overall cost of capital reduces, right? This is called as phase 1 under traditional approach. Now what happens, एक पर्टिकुलर लेवल से 40% तक इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट 40% के ऊपर जब डेट कंटेंट जाएगा, नाउ ग्रेजुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स विल फील द हिट ऑफ रिस्क. ओके, 45% जब जाएगा तो ग्रेजुअली वो अब रिस्क फील करना स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट. तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहा है आफ्टर डेट कंटेंट रीचेस एक मिनिमम लेवल, नाउ व्हाट विल हैपन, कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क फील होना स्टार्ट हुआ है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, व्हेन आई एम राइटिंग राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में जैसे मैं लिख रहा हूं, तो इसे क्या हो रहा है, डेट इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज राइजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, नाउ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कांस्टेंट रहेगा. दैट इज नेट इनकम अप्रोच में हमने ये देखा था ना, सॉरी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, कि कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहता है, benefit which is been received because of increase in the cheaper source of finance proportion in the capital structure, that is offsetted by increase in cost of equity, and because of this overall cost of capital remains constant. This is called as phase 2 by traditional approach. तो बेसिकली उसने क्या किया है, कॉपी किया है पहले फेज में नेट इनकम अप्रोच का, एंड सेकेंड फेज नेट ऑपरेटिंग इनकम, एंड थर्ड फेज ही हैज एडेड. नाउ व्हाट ही सेज कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद now debt holders also will start feeling riskiness. नॉर्मली जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से, सपोज मुझे लोन लेना है, ठीक है, मेरा जो इनकम है उसके बेसिस पे मुझे 50 लाख का सपोज लोन मिल सकता है, तो ऑलरेडी मैंने 50 लाख का लोन लिया हुआ है. आज मैं बैंक के पास एक और बार जाऊं, मुझे 10 लाख का एडिशनल लोन चाहिए, तो विल बैंक फील द रिस्क और दे विल नॉट फील द रिस्क? अब उनको भी रिस्क लगेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अब वो लोन ले रहा है. सिमिलरली अगर आप डिबेंचर्स होल्डर हो एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, आप कंपनी का बैलेंस शीट तो देखोगे, राइट. सपोज ऑलरेडी टोटल कैपिटल से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ था उनका, उसमें से 9 करोड़ तो ऑलरेडी लोन फंड्स है एंड 1 करोड़ इक्विटी फंड है, ठीक है. मींस 90% ऑलरेडी दे आर यूजिंग डेट एंड नाउ अगेन दे आर कंसीडरिंग टू इंक्रीज द डेट. मतलब ऑलरेडी बहुत कंपनी रिस्क में है, and now if they are further increasing the risk by introducing debt content into the capital, तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर या डेट होल्डर्स को भी अब रिस्क लगेगा. therefore जब रिस्क इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? now that will also increase because now debt holders will be also starting feeling the heat, right. so now debt holders will also increase their expected return or cost of debt. कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वैसे ही इंक्रीज हो रहा था, अब तो ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा, दिस विल आल्सो राइज, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड फेज में कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट तो क्या वैसे भी एवरेज ही है, तो दिस विल आल्सो राइज. तो लास्ट फेज में तीनों कॉस्ट इंक्रीज होंगे. तो यहां पे हम अगर मैं लिखूं तीनों फेज, तो फेज 1 में केडी एंड केई कांस्टेंट and KO decreasing. Second phase में KD and KO constant, KE reducing. Third phase में KE, KO, KD all are rising.
नोट्स में होगा ना ये ग्राफ? अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो दिया हुआ है ग्राफ वो तो मैंने मॉड्यूल का ही लिया हुआ है, बट उनने इतने ऐसे फेज 1 फेज 2 में ऐसे दिया नहीं, डायरेक्टली उन्होंने ड्रॉ किया। अगर आप देख सकते हो तो शुरुआत में के डी स्लाइटली कांस्टेंट था, के ई स्लाइटली कांस्टेंट था, के ओ वाज डिक्रीजिंग। देन एट मिडिल लेवल उन्होंने प्रॉपरली दिया नहीं है एक्चुअली, इन्होंने मॉड्यूल का ही है, एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग स्टार्ट राइजिंग, बट दिस इज मोर प्रॉपर। If you have completed, then you can read 35th problem. Thirty-fifth. शेरू? हाँ, अच्छा। Now read 35th. Have you completed the reading? So again simple example है, डेट कंटेंट दिया है आपको, एग्जिस्टिंग डेट कितना है, एग्जिस्टिंग डेट कितना है, हाँ 35th प्रॉब्लम ओनली। सपोज ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा रहता तो आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ता, तो क्या क्या कॉलम्स ड्रॉ करोगे? चलो मुझे हेडिंग बताओ पहले। एग्जिस्टिंग डेट 30% एंड 50%, एग्जैक्टली सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, राइट। हेडिंग, ये तो कॉलम्स बताया हमने। हेडिंग वी कैन राइट कैलकुलेशन, क्या पूछा है आपको कैलकुलेट करने के लिए? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो सेम वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ value of firm and
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने स्टेप्स रीड ही नहीं किए क्या? एक्चुअली स्टेप्स इसमें दिए ही नहीं है, बट देन व्हाट विल बी द स्टेप्स? यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज चेंजिंग, देयरफॉर इट वाज सेड कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टेप्स क्या रहेंगे? अगेन सेम, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी गिवन टू यू, तो EBT डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी you'll be getting value of equity, value of debt will be given, so value of equity plus value of debt, it will be the value of firm, EBIT divided by value of firm, आपको overall cost of capital मिलेगा। तो same steps as your net income approach, ठीक है? तो what columns we were saying to draw? Serial number, particulars and right hand side debt। तो हम परसेंटेज लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम का परसेंटेज कितना है वो आप मुझे बताओगे, सेकेंड कॉलम में डेट इट वाज बीन गिवन 30% एंड थर्ड कॉलम में 50%। आप मुझे बताओ कितना होगा? हाँ, इक्विटी से एग्जैक्टली। हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ डेट देन? कितना? जब नील होता है ना तो उसको हम 0% लिखते हैं। दिया है ना आपको कि प्रेजेंटली एंटायर फंड इज इशूड बाय इक्विटी, यानी कि डेट है ही नहीं, तो 0% आपको लिखना था। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। Existing, there was no debt at all, right? Therefore you will be writing 0%, 30% and 50%. Gradually you will be increasing it to 30 and 50. So means existing, it was totally, what kind of firm we call it as? Whenever there is 100% equity finance, unlevered firm. तो मुझे बताइए यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? एग्जैक्टली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि एक ही आपका सोर्स है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा दैट इटसेल्फ विल बी द ओवरऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मालूम रहेगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 16%, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेकंड एंड थर्ड कॉलम में अलग अलग है, राइट? बट देन वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स, सो विल राइट डाउन। सो व्हाट विल बी सीरियल नंबर A? EBIT। EBIT कितना दिया आपको? 3 lakhs। Operating profit will always remain constant, it will not change as per your capital structure because it is operating profit। लेस इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रेट कितना दिया आपको? सर हाँ, फर्स्ट कॉलम में तो नहीं लाएगा, सेकेंड कॉलम में आपको दिया है 10%। तो यहाँ पे आप वर्किंग दिखाइए। एक्चुअली डेट अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? ऊपर एक्चुअली डेट अमाउंट लिखनी चाहिए थी हमें, बट रहने दो। 6 lakhs, टोटल कैपिटल 20 lakhs है, एंड ऑलरेडी वी अज्यूम दैट कि टोटल कैपिटल आपका चेंज नहीं होगा। डेट 30% अगर आप इंक्रीज कर रहे हो यानी कि इक्विटी कम कर रहे हो, तो 20 lakhs इंटू 30%, 6 lakhs इंटू 10%, 60,000। एंड नेक्स्ट कॉलम में अब 10 lakhs आएगा ना डेट, अब 10 lakhs इंटू 10% मत लिखो, क्योंकि आपको दिया है क्वेश्चन में कि जब रिस्क इंक्रीज हो रहा है, नाउ डेट होल्डर हैज आल्सो इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब भी आपका डेट 50% तक जाएगा तो 12% विल बी द कॉस्ट ऑफ डेट, इट इज बीन गिवन टू यू। सो 10 lakhs इंटू 12% आएगा यहाँ पे 1,20,000। एग्जाम में इस तरह से सिली मिस्टेक्स होते हैं, रीड करते टाइम आप ध्यान देके रीड नहीं करते, मींस आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स।
So what we do, 10 lakhs into 10% अगर लिया तो everything will go wrong further. So point number C, EBT. Now this is the earnings available to equity shareholders. So we can calculate for value of equity, and that will be depending upon the cost of equity which is being given to you. So next we can write cost of equity, which we denote by KE. 16%, उसके बाद 17%, and next column में 20% exactly. Then we can calculate value of equity. This will be EBT divided by cost of equity. 18,75,000. 14,11,000. And next column 9 lakhs. Value of debt, ये तो फर्स्ट कॉलम में नील, यहाँ पे 6 lakhs. आपकी इच्छा तो वर्किंग दिखा सकते हैं, 20 lakhs into 30%, and यहाँ पे 10 lakhs. 20 lakhs into 50%. Now what we can calculate is value of firm. This will be serial number E plus F, that is value of equity plus value of debt. तो फर्स्ट कॉलम में 18,75,000, 20,11,764, and 19 lakhs. So here you can see कि वैल्यू भी शुरुआत में इंक्रीज हो गई, बट टू मच ऑफ रिस्क has led to decrease in the value. And last point what we can calculate is overall cost of capital, which will be EBIT divided by A by G ना. तो फर्स्ट कॉलम में तो 16% आएगा, सेकंड 14.991, 15.79 बराबर. तो हमने जो डायग्राम में ड्रॉ किया था, यू कैन सी शुरुआत में 16% था. यहाँ पे जो हमने डायग्राम निकाला है, कहाँ निकाला था वो, आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ही स्टार्ट किया ना. कहाँ गया मेरा वो डायग्राम, हाँ यहां से स्टार्ट किया ना आपने, क्योंकि जब ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि डेट इज जीरो है, राइट. सो एट दिस पॉइंट व्हेन डेट इज जीरो, आपका स्टार्ट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट विल बी सेम. यहां से आगे जैसे जैसे डेट कंटेंट इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रह रहा है, बट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेजुअली रिड्यूस होगा, राइट. तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 16% से. एज एंड हाउ द डेट कंटेंट हैज इंक्रीज, your overall cost of capital was falling down, 14.91 आ रहा है, but too much of debt adds to risk, and each investor, whether it is debt holder or equity holder, they will increase their expectation, and because of this you can see now overall cost of capital has started to rise. तो शुरुआत में यहाँ पे फॉल हो रहा है एंड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है.
at that point which I have told you that you have to remember, whenever it is unlevered firm, cost of equity is equal to overall cost. This what we have written unlevered firm के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट, ये आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में, आर यू ऑल विथ मी, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन दिया था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी चेंजिंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम रहेगा। उन्होंने ना हो भी कैलकुलेट, हमने ऊपर तो स्टेप्स लिखे थे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के, ये देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का ही है क्या, नेट ऑपरेटिंग का नहीं है शायद से, बट नेट ऑपरेटिंग हमने कैसे कैलकुलेट किया था, देयर ओवरऑल कॉस्ट इज नॉर्मली गिवन, राइट। एग्जाम में एक प्रॉब्लम में कैसे दिया था, फॉर अनलीवर्ड फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%, इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया था, एंड देन you are required to calculate the cost of equity when the debt content is, say for example 30%, 50% and so on। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, EBIT minus interest, you will be getting EBT, right। एंड वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, मतलब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया रहेगा, राइट। नॉर्मली व्हाट वी डू, वी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म। आई एम टॉकिंग ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और टाइम बिंग। Why I'm talking, because that जो स्टेटमेंट आपने लिया है, लिखा है अनलीवर्ड फर्म के लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट जो है सेम रहेगा। हाउ इट हेल्प्स, एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने दिया था अनलीवर्ड फर्म, यानी कि जब डेट कंटेंट 0 है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% दिया, ठीक है, एंड आपको 30% एंड 50% में कैलकुलेट करना था क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो स्टेप्स क्या है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT, ओवरऑल कॉस्ट you will be writing, जो दिया रहता है मोस्टली, उस क्वेश्चन में दिया नहीं था, ओके। देन विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ फर्म, देन यू विल बी टेकिंग वैल्यू ऑफ डेट, तो यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी, फर्म माइनस डेट, एंड वंस यू गेट EBT एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया नहीं था क्वेश्चन में, कहीं पे भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया नहीं था। मेनी ऑफ द स्टूडेंट जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, आगे जाके जब उन्होंने देखा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया ही नहीं है, they were not able to proceed। now here what will be the overall cost of capital, will be taking 12%, क्योंकि जब कंपनी का डेट कंटेंट नहीं था तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था 12%। now overall cost of capital will be also 12%, and net operating income approach क्या कहता है कि डेट इक्विटी मिक्स कोई भी हो, मतलब 0 डेट कंटेंट हो या 100% हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। मींस व्हेन देयर वाज अनलीवर्ड फर्म, cost of equity was been given, that was the same overall cost, and this will remain constant at all debt equity mix, इसलिए यहां पे आपको 12% ही लेना था। Are you getting the implication of this small statement? For net operating income approach and Modigliani-Miller approach, unlevered firm में जो cost of equity रहेगा, same will be the overall cost of capital and that will remain constant. Equity change होगा, but overall cost of capital will remain constant, right? चलिए, shall we proceed? So this was ट्रेडिशनल अप्रोच। अब क्या करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के वैसे भी कोई ज्यादा एग्जांपल्स है नहीं, सो वी कैन स्टार्ट विथ मोडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच। Shall we start? What is been given by Modigliani and Miller approach? First point, capital structure does not influences the overall cost of capital and value of firm। मतलब जैसे जैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ओवरऑल कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। अब ये जो उसका प्रपोजिशन है, उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या था,
he said that cost of debt will remain constant. As and how debt content increases, a risk perception of equity shareholder will increase, so cost of equity will rise, right? तो cheaper source of finance का proportion increase होने की वजह से जो benefit हो रहा है, that was exactly offsetted by increase in cost of equity. Therefore, overall cost of capital will remain constant. And as overall cost of capital is remaining constant, the value of firm will remain constant. ये theory जो मैंने आपको अभी बताई, क्या आपको सुनी सुनाई सी लग रही है? कहां पे सुनी थी? हाँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो बेसिकली मोडिग्लिन एंड मिलर अप्रोच ने सेम थ्योरी दी है. He has not changed the proposition which has been given by net operating income approach. Only the thing is that he has supported this theory and उसने आगे जाके एक और कंसेप्ट ऐड किया है जिसका नाम है आर्बिट्रेज प्रॉफिट. तो वो हमें डिस्कस करना है. अदरवाइज ये जो थ्योरी है वो तो सेम ही है. ओके, तो मोडिग्लिन एंड मिलर अप्रोच में आपको कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट या एक्सेट्रा मोस्टली इट वोंट बी आस्क्ड. एंड फर्दर 1963 में मोडिग्लिन एंड मिलर अप्रोच ने टैक्स अज्यूम करके भी कैलकुलेशन दिखाया कि कैसे कैलकुलेट करना है. तो व्हेन देयर विल बी टैक्स हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम मान के चल रहे कि देयर इज नो टैक्स. ओके, तो प्रपोजिशन इज सेम. फर्दर ही हैज एडेड वन कांसेप्ट, आर्बिट्रेज. हैव यू एवर हर्ड आर्बिट्रेज? व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेज? हाँ, फाइनेंशियल फाइनेंस के टर्म. मेरे ख्याल से आपने तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में कहीं तो लिखा था ना. हाँ, आपने किया था क्या? हाँ, तो यू कैन टेल नाउ आर्बिट्रेज. हाँ, तो ये पे भी परचेस एंड सेल का ही है. सेम सेम परचेस एंड सेल. बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग ऑफ. हाँ, तो बेसिकली आर्बिट्रेज प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेज गेन की जब बात कर रहे हैं, इट इज रिलेटिंग टू परचेस एंड सेल ओनली. तो बेसिकली हाँ, तो प्रॉफिट कब डिराइव होगा? when you are purchasing at lower price and when you are selling it, you are selling at higher price. तो नॉर्मली एक ही टाइम पे प्राइस लोअर एंड हायर नहीं होगी. तो व्हाट हैपेंस, एक मार्केट में लोअर प्राइस रहती है, दूसरे मार्केट में हायर प्राइस हो सकती है. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास आज एक डॉलर्स है. ओके, मैं यहाँ पे कोल्हापुर में सेल करने गया, तो यहाँ का जो रेट था से $1 की प्राइस थी 70 रुपीज. ओके, बट सेम टाइम मेरा एक लंदन का ब्रोकर है, उसने मुझे कहा कि वहां पे रुपीज एंड डॉलर का रेट 71 है उस मार्केट में. तो मैं क्या कर सकता हूं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग ओवर हियर, मैं ऑनलाइन डायरेक्टली वहां पे सेल कर सकता हूं. एंड सपोज मेरे पास डॉलर ना हो, बट आई नो द डिफरेंस कि लंदन मार्केट में 71 है, इंडियन मार्केट में 70 है. तो मैं क्या कर सकता हूं, इंडियन मार्केट में खरीदूंगा एंड लंदन मार्केट में सेल कर दूंगा. राइट, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम परचेसिंग इन दैट मार्केट वेयर प्राइस इज लोअर and I'm selling in another market where price is higher, and because of this whatever profit I am earning, that profit is called as arbitrage profit. Have you understood? So what has been given by Modiglan and Miller approach? Modiglan and Miller approach says कि आपके कंपनी का रिस्क क्लास इंडस्ट्री का सेम रहेगा. सपोज दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. ओके, नाउ ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज सेम, टोटल कैपिटल इज ऑल्सो सेम. टोटल कैपिटल दोनों कंपनी का 1 करोड़ एंड से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 20%. ओवरऑल कॉस्ट नहीं, सपोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दिस इज नथिंग बट से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्योंकि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटर्न होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट ही होगा. बराबर. नाउ आइडियली जब कैपेसिटी सेम है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल सेम है, तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी सेम ही आना चाहिए. राइट, हो सकता है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग था. यहाँ पे इक्विटी थी से 60 lakhs, डेट 40 lakhs, एंड दूसरी कंपनी रिस्की कंपनी है, यहाँ पे इक्विटी है 30 lakhs एंड डेट रिमेनिंग 70 lakhs. But we have studied net operating income approach and Modiglan and Miller approach says कि capital structure से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, value of firm तो same रहेगी. And when I am talking value of firm, अगर मैं per share बात करूं, I'll be talking of value of equity shares, right?
तो यहाँ पे सपोज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, सपोज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सिंगल शेयर यहाँ पे 100 रुपीज है और यहाँ पे 110 रुपीज, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, इंडस्ट्री सेम है, मतलब रिस्क क्लास सेम है, टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल इज ऑल्सो सेम, बट स्टिल मार्केट में इक्विटी शेयर्स की प्राइस 100 रुपीज एंड दूसरे कंपनी बी लिमिटेड की 110। आइडियली तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नाउ व्हाट पीपल विल डू, बेसिकली मोडिग्ले ने मिलर अप्रोच ने एडिशन क्या किया है, उसने जस्टिफिकेशन दिया है कि वो प्रोपोजिशन, व्हाट वाज द प्रोपोजिशन, कि वैल्यू ऑफ फर्म शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन, अब वैल्यू ऑफ डेट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहे तो वैल्यू ऑफ फर्म तो कांस्टेंट ही रहेगा एट ऑल डेट इक्विटी मिक्स। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने जस्टिफिकेशन दिया था, सेम तो इसने लिया है, बट एडिशनली इसने कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज भी इंट्रोड्यूस किया है, which makes it more practical कि why the value of equity should also remain constant। यहां पे क्या होगा, now what happens, you think as a investor, आपको इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, दोनों कंपनी का एवरीथिंग पोटेंशियल, प्रॉफिट पोटेंशियल, एवरीथिंग इज सेम, बट मार्केट प्राइस यहां पे अलग अलग है। तो व्हाट विल बी डूइंग, अगर आपके पास बी लिमिटेड के शेयर्स हो तो इट इज हाईली प्राइस्ड, तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे सेल कर दोगे एज इट इज हायर प्राइस, एंड यहां पे क्योंकि वो अंडर प्राइस है तो यहां पे बाय करोगे। तो एवरी इन्वेस्टर विल स्टार्ट डूइंग दिस, सेल करेंगे बी लिमिटेड के, बाय करेंगे ए लिमिटेड के, एंड इन बिटवीन दे विल बी अर्निंग द प्रॉफिट, बराबर। अब ग्रेजुअली क्या होगा लॉन्ग टर्म में, एज मोर पीपल विल बी सेलिंग बी लिमिटेड, सप्लाई बी लिमिटेड का ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, राइट। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस राइज होगा या कम होगी, नीचे आएगी, सो इट विल कम डाउन। अज्यूम करके चलते हैं 105 रुपीज उसकी मार्केट प्राइस आ रही है। अब ए लिमिटेड की मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो उतना ही है, तो मार्केट प्राइस यहां पे इसकी इंक्रीज होगी, अज्यूम करके चलते हैं 105, राइट। तो लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनी के प्राइस, और टू कंपनीज हु आर हैविंग डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, या मान के चलते हैं कि सेम कंपनी बट कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया है, राइट। बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है तो सेम ही रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे 105 मान के चल रही कि एवरेज है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर यहां से प्राइस चेंज हो, यहाँ पे आगे जाके 108 हो, यहाँ पे 102 हो, अगेन आर्बिट्रेज प्रोसेस विल स्टार्ट। अब लोग क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, यहाँ पे परचेस करेंगे, एंड दिस परचेस एंड सेल विल मेक इन लॉन्ग टर्म द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स एज कांस्टेंट, and as value of equity remains constant, value of debt remains constant, therefore value of firm remains constant. This is the additional justification what he has given. Have you understood so far? अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इट विल बी गिवन दैट यू आर होल्डिंग बी लिमिटेड शेयर्स, ठीक है, आप यहां पे सेल करोगे एंड यू विल परचेस ए लिमिटेड शेयर्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज द आर्बिट्रेज गेन। तो आर्बिट्रेज गेन यहां पे डायरेक्टली वैल्यू में नहीं होगा, ऑपरेटिंग अर्निंग में भी देखना होगा, क्योंकि अगर आप बी लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रहे हो एक, तो जब ए में इन्वेस्ट करोगे तो एक आपको नहीं होगा, बेसिकली 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, राइट, मतलब 110 अगर इन्वेस्ट करने तो 1.1 शेयर्स मिलेंगे आपको। तो जो ईबीआईटी से आपको डिविडेंड मिलेगा दैट आल्सो विल बी डिफरेंट, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज। बट मोडिग्ले ने मिलर अप्रोच ने एक अजम्पशन किया है, व्हाट इज दैट अजम्पशन, कॉर्पोरेट लेवरेज will be replaced by personal leverage। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एज ए इन्वेस्टर वो क्या करेगा, जब हायर प्राइस वाले कंपनी को सेल कर रहा है, लोअर प्राइस वाले को बाय कर रहा है, तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर वो फॉलो करेगा। यानी कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर से बी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट था, तो वो क्या करेगा इन्वेस्टर, वो भी जिस प्रोपोर्शन में कंपनी ने बोरो किया था उसी प्रोपोर्शन में वो भी बोरो करेगा, ठीक है। मतलब कंपनी का जो लेवरेज रहेगा, सिमिलर लेवरेज विल बी दैट फॉलोड बाय इंडिविजुअल। जैसे कंपनी ने रिस्क लिया था, सेम रिस्क कंपनी ने सपोज 10 लाख में से 4 लाख का बोरिंग किया था, अब उस इन्वेस्टर के पास 1 लाख का इक्विटी है, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 लाख टोटल कैपिटल, यहाँ पे सॉरी 10 लाख हम मान के चल रहे इक्विटी है, एंड
से 5 lakhs इज डेट, ये कंपनी का कैपिटल है, टोटल कैपिटल इज 15 lakhs। अब इन्वेस्टर के पास 1 लाख की इक्विटी शेयर्स थे, तो व्हाट ही विल डू, ही विल बोरो 50,000 रुपीज, ठीक है, तो टोटल उसका कैपिटल कितना होगा 1.5 lakhs। आउट ऑफ दैट नाउ सेम प्रोपोर्शन ही इज फॉलोइंग इज ऑफ कंपनी, तो कंपनी का जो रिस्क पोटेंशियल था, सिमिलर रिस्क पोटेंशियल ही विल बी आल्सो टेकिंग दिस द अजम्पशन, therefore it is written, जब फाइनेंसिंग चेंज होगा इसका मतलब कॉर्पोरेट लेवरेज, दिस विल बी रिप्लेस बाय पर्सनल लेवरेज, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का था सेम कैपिटल स्ट्रक्चर वो फॉलो करेगा। Have you all understood? इसका भी पर्पस सेम ही है कि कंपनी लेवरेज का बेनिफिट करके जिस मैनर में अपने शेयर होल्डर्स को अर्निंग इंक्रीज कर रहे थे, नाउ व्हेन इन्वेस्टर इज स्विचिंग हिज इन्वेस्टमेंट, ही विल आल्सो मेक यूज ऑफ सेम लेवरेज टू इंक्रीज हिज इनकम। Have you all understood? तो बेसिकली अब हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, जब हम एग्जांपल देखेंगे व्हाट इज दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस, यू विल अंडरस्टैंड मोर प्रॉपर्ली। शैल वी स्टार्ट विद एग्जांपल? रीड 36th प्रॉब्लम। कंप्लीटेड विथ रीडिंग। आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, दो कंपनी, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दे आर बिलोंगिंग टू सेम रिस्क क्लास। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी एक्स के कितने हैं 90,000, वेयर एज कंपनी वाई के 1,50,000, एंड देन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज बीन गिवन 1.20 एंड 1.00, यानी कि कंपनी एक्स ओवर वैल्यूड है। तो जब आपको आर्बिट्रेज गेन अर्न करना है, आप क्या करोगे, एक्स के शेयर सेल करोगे एंड वाई के शेयर्स बाय करोगे, ठीक है। कंपनी एक्स का बोरोइंग था 60,000, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो भी उसी प्रोपोर्शन में बोरो करेगा टू रिप्लेस कॉर्पोरेट लेवरेज विद पर्सनल लेवरेज, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है 18,000 ओके। ऑल द प्रॉफिट आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये भी अजम्पशन था अगर आपको याद हो, नो रिटेन्ड अर्निंग्स 100% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। Explain how under Modigliani and Miller approach an investor holding 10% of shares of company X, तो एक इन्वेस्टर है जिसके पास कंपनी X के 10% शेयर्स है, will be better off in switching his holding in company Y, यानी कि कंपनी X सेल करके वो कंपनी में Y में इन्वेस्ट करके उसको कैसे फायदा होगा, that we have to calculate, right? Many times this will be also not been given, it will be only given calculate arbitrage profit as per Modigliani and Miller approach, इन्वेस्टर के कहां पे होल्डिंग है वो दिया नहीं रहेगा। इन दैट केस वी हैव टू राइट अजम्पशन कि हायर वैल्यूड जो प्राइस है, वी विल बी अज्यूमिंग कि इन्वेस्टर इज होल्डिंग 10% ऑफ दैट कंपनीज प्राइस शेयर्स, ओके। जो भी हायर वैल्यूड रहेगा हम मान के चलेंगे कि उसके पास 10% शेयर्स है उसके, अगले प्रॉब्लम में है वैसे एक एग्जांपल, ठीक है। बट नाउ शैल वी स्टार्ट विद राइटिंग, व्हाट विल डू, हम स्टेप्स में उसको लिखेंगे, ओके। बट बिफोर दिस राइट डाउन अजम्पशंस, दो अजम्पशन जो है मोडिग्लियन मिलर अप्रोच के वो लिखेंगे। First assumption you can write, firms can be classified into equivalent risk class, second
corporate leverage will be replaced with personal leverage. That is, investor will follow similar capital structure as company is having, with same rate of interest. ये भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। एक तो दोनों अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन ठीक है, लेकिन सेकंड अजम्पशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टर क्यों उसी तरफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यानी कि यहां पे कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जैक्टली विल नॉट बी फॉलोइंग सिमिलर कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड सेकंड थिंग, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है, हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टर को भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो दिस विल बी वर्किंग ओनली इन थियोरी। एग्जैक्ट जो हम आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जैक्टली इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो राइट डाउन स्टेप्स। नाउ वी आर सॉल्विंग एग्जांपल नंबर कौन सा, 36 ना। So write down step 1. Investor will sell 10% shares of company X. 10% shares of company X. Below write down amount realized. अब इन्वेस्टर जब 10% ऑफ कंपनी एक्स शेयर सेल करेगा, कितने पैसे मिलेंगे उसको? How much? 10,800। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे कंपनी के? 90,000। अब उसके पास 10% थे, यानी कि 9,000 थे, एंड मार्केट प्राइस शेयर के 1.20, 10,800 रुपीज उसको मिलेंगे। रिटर्न। नाउ स्टेप 2। नाउ वी आर सेड कि कॉर्पोरेट लेवरेज रिप्लेस करेगा, यानी कि जो कंपनी का बोरिंग था, सिमिलर बोरिंग ही विल बी आल्सो डूइंग। तो कंपनी में उसके 10% शेयर्स थे, तो नाउ ही विल बी बोरिंग 10% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कंपनी का जो डेट था। ओके, तो कंपनी का डेट कितना था? कंपनी का 60,000, तो 6,000 वो बोरो करेगा 10%। ओके, सो राइट डाउन इन्वेस्टर विल बोरो this is the assumption, basic assumption, it is mandatory, capital structure same follow करना है। okay, this is the assumption of this theory। तो similar capital structure लेके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, so investor will borrow 10% of rupees 60,000, that is rupees 6,000 at the rate, कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। अब वो भी 6% पे बोरो करेगा। दिस इज द assumption। स्टेप 3, टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई। अब कंपनी वाई तो अनलिवर्ड फर्म है, कंपनी वाई में सिर्फ इक्विटी शेयर्स थे, तो इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेगा। टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई, कितने फंड्स अवेलेबल है अभी उसके पास? 16,800। 10,800 प्लस 6,000 जो उसने बोरो किया है, तो 16,800 अब उसके पास अवेलेबल है, जो वो इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी वाई में। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ही कैन परचेस? प्राइस कितने पर शेयर? 1 रुपये है ना, तो 16,800 शेयर्स वो बाय कर सकता है। सो राइट डाउन द इन्वेस्टर विल परचेस investor
will purchase 16,800 shares of company Y at the rate rupees 1 per share. Investor will purchase 16,800 shares of company Y at the rate rupees 1 per share. बराबर. बेसिकली ये तो था प्रोसीजर कि वो क्या करेगा, हायर वैल्यू कंपनी के सेल करके लोअर वैल्यू में बाय करेगा. नाउ बिकॉज ऑफ स्विचिंग फ्रॉम कंपनी एक्स टू कंपनी वाई, हाउ मच ही विल बी गेनिंग. तो आपको क्या करना होगा, जब वो कंपनी एक्स में कंटिन्यू कर रहा था तो ऑपरेटिंग इनकम उसका कितना हो रहा था, दैट विल कैलकुलेट. व्हेन ही स्विच टू कंपनी वाई तो ऑपरेटिंग इनकम कितना वो अर्न करेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड द डिफरेंस विल बी द आर्बिट्रेज गेन व्हिच ही इज अर्निंग. ओके, सो राइट डाउन स्टेप 5 आर्बिट्रेज गेन, calculation of arbitrage gain. Now what we'll do, we'll draw the columns. Serial number, particulars, then company X, company Y. Now first we'll be writing, we have to calculate earnings available to total equity shareholders, वो तो calculate करना होगा, and then we can calculate earnings available to our concerned investor. So first write down EBIT. How much has been given EBIT? 18,000. Less interest. कंपनी एक्स का डेट कितना था, 60,000 इंटू 6%, 3,600. कंपनी वाई में डैश. नेक्स्ट विल बी ईबीटी, एंड दिस इज नथिंग बट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. कितना होगा, 14,400 ना, यहाँ पे 18,000. and we are assuming that whole earnings has been distributed as dividend, barabar. So now we have to calculate earnings available to investor. So point number D, write down earnings available to investor, our concerned investor. सबसे पहले उसको डिविडेंड मिलेगा. अगर उसने कंपनी एक्स में कंटिन्यू किया रहता तो उसको डिविडेंड कितना मिलता, 1,440, क्योंकि उसके पास 10% शेयर्स थे तो अर्निंग्स भी 10% आएगा, क्योंकि 14,440 इज अवेलेबल टू 90,000 शेयर्स, 9,000 शेयर्स के लिए 10% आएगा. अगर उसने स्विच नहीं किया रहता तो उसको बोरोइंग करने की भी जरूरत नहीं, राइट. इसका मतलब यहां पे लेस इंटरेस्ट नील आएगा. अगर उसने कंपनी एक्स में ही कंटिन्यू किया रहता तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन वाज नॉट देयर. इंटरेस्ट कब आएगा, जब वो स्विच कर रहा है कंपनी वाई में. तो इन्वेस्टर का नेट अर्निंग्स कितना था अर्लियर, 1,440. if he would have continued in company X, his earning would have been 1,440. now we have to see कि स्विच करने के बाद उसका इनकम कितना होगा, बराबर. now after switching, how much will be the income of this investor, 5,550. how 5,540, 5,040 total. how you have calculated, conceptually are correct, only calculation is wrong. Exactly 2016. जल्दबाजी में यहां पे भी 10% मत लेना. अब ये जो 18,000 है, दिस इज अवेलेबल टू टोटल 1,50,000 शेयर्स, बराबर. यहां पे
18,000 earnings is available to 1,50,000 shares, तो 16,800 shares के लिए कितना? तो simply will be calculating 16,800 into 18,000 divided by 1,50,000. ये आपने किया ना 18,000 divided by 150 परसेंटेज में करके आपने 16,800 में कैलकुलेट किया. सेम प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन यू हैव डन. मींस उसको आप डिविडेंड 2016 मिल रहा है क्योंकि उसने 16,000 लिया है, मतलब बोरोइंग करके लिया है, तो जो बोरोइंग किया है उसका भी उसको रीपेमेंट करना होगा. अब ये जो 3,600 था लेवरेज इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, सिमिलर स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड बाय इन्वेस्टर, तो अब उसको इंटरेस्ट पे करना होगा ना. तो इंटरेस्ट कितना पे करेगा वो? अभी उसने कितना बोरो किया है? 6,000 एट द रेट 6%, दैट इज 360. यानी कि वो क्या कर रहा है? अभी लोन फंड्स लेके हायर इनकम जनरेट कर रहा है अभी वो. अब कितना इनकम आएगा उसका? 1656. यानी कि जो लोन फंड्स ले आता है उसको रिटर्न देने के बाद भी उसको 1656 मिल रहा है. तो डिफरेंस कितना हुआ यहां पे? दिस इज योर आर्बिट्रेज गेन. दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो आज क्या करेंगे आप? एक बार ये स्टेप्स एक अगेन जस्ट गो थ्रू इट. टुमारो विल कंटिन्यू विथ द सिमिलर एग्जांपल्स ऑन मोडिग्लिया-निमलर अप्रोच. अब यहां पे हमने क्या देखा? लीवर्ड फर्म से वो अनलीवर्ड फर्म में स्विच हो रहा है. इन सम प्रॉब्लम विल सी अनलीवर्ड फर्म से वो लीवर्ड फर्म में स्विच जब करेगा तो कैसे कैलकुलेट करना. सो दैट विल सी टुमारो. ओके.